हम किसी भी चीज को जब समझते हैं तो उसको उसके स्थूल रूप से घटकों को घटाते घटाते उसके सूक्ष्म तक जाते हैं। माने ग्रास टू सटल टू subtlest. Gross form is easily grasped by our senses, but the subtle is not. And atomic or the cellular part of any gross form is absolutely can't be observed by your physical eyes. Actually, technically, atom has never been seen by eyes. But the scientist has done the calculations to know from where the thing happened. So all the molecular sciences, all the cellular sciences are coming into the zone of, we can say, level of calculation, mathematical calculation, and assumptions. Assumptions which are based on the calculations. But then there is a lot of hypothetical imaginations which are included in this. Let's say the minutest part of the atom is a wave. Nobel Prize was given for this finding. Then they said another after 4 years, it's not a wave, it's a quark. Nobel Prize was given for this finding. And then another 3-4 years go, then the scientists say it's a quark and a wave. And again the prize was given. Now, the strangest part is this, are they talking about one same thing? Of course, yes. But this thing is not a thing. This thing is something which can't be even seen with the microscope. So the scientist is using the calculations, assumptions, the conclusions coming after all the calculations and assumptions. And hence, for one thing, they can have different opinions. And the whole world then accepts one opinion and takes that as the scientific research. After a few years, another one comes in. And now the scientists are coming to the idea that nothing conclusive can be said, and what you are seeing is just projection of your own mind. That is the quantum physicist opinion. So the seen world is actually just a projection of your mind is very mind-boggling to the scientist. But for us, the Bharatiya Vedantist, it's a norm. We knew it much ahead of them, actually. Let's say the Jainism in philosophical world is called Anuvad. Anuvad. Anu means atom. When did Jainism started? Not 500 years ago, no? Not 1,000 years ago, not 5,000 years ago. One of the earliest Tirthankars, the Rishabh, is mentioned in Rig Veda. So how old it is? And that religion is also known as Anu religion. Anu Vrata, Anu Dharma, Anu philosophy. अब अगर कोई वेस्ट का बंदा उठ के कहे कि एटम की खोज हमने की है, भाई ठीक है, आपने अंग्रेजी में बोल दिया, अंग्रेजी में छाप दिया, इससे वो आप उसके डिस्कवरी करने वाले तो नहीं बन जाएंगे। और अणुओं और परमाणुओं के बारे में बात हमारे सांख्य दर्शन में भी है।
सांख्य दर्शन को सांख्य इसलिए कहते क्योंकि ये शब्द आया है संख्या से। संख्या माने गिनती। तो ये सारा गिनती का खेल चलता है। जैसे कहा 5 तत्व है, पंच तन्मात्रा है, पंचभूत है, पंच महाभूत है। उन पंचभूतों के पंचीकरण से सृष्टि होती है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी के तत्व का एक भाग पृथ्वी पर है और बाकी जो 4 भाग है वो बाकी 4 तत्वों में। ऐसे ही जल का मुख्य भाग उसके पास है, बाकी आधा जो है बाकी तत्वों में। अब इसकी जो डिटेल पूरी मेंशन आती है ये सारी सांख्य दर्शन से आती है, जो वेदांत में इनकॉर्पोरेटेड है। कोई भी वस्तु कैसे बनी वो उसके मूल में जाके उसके बारे में विचार करते हैं। पंच तन्मात्रा पहले हुई, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध पहले हुआ है, और रूप को देखने की जो आंख है वो बाद में बनी है। शब्द पहले है, सुनने वाला कान बाद में बना है। रस पहले है, उसका स्वाद लेने वाली स्थूल जीभा बाद में बनी है, क्योंकि स्थूल शरीर की रचना तो बहुत बाद में होती है। अब इसको रिवर्स में सब चीज को समझा जा रहा है। ये चीज कैसे बनी? लेट्स से अगर हम कहे दैट एक घड़ा बना है, तो हम कहेंगे घड़ा कैसे बना है? तो घड़े को बनाने वाली मिट्टी है। मिट्टी घड़े के आकार में तो नहीं थी ना, मिट्टी तो बेआकार की थी, निराकार थी। फिर उस मिट्टी को गूंदने वाला कुम्हार आया, उसने पानी डाला, उसको गूंदा उसने, और बड़ा सही गूंदा। फिर उसने अपने चक्के पे रखा, उसको डंडे से चक्के को घुमाया, फिर उस पे मिट्टी का एक रखा लौंदा सा, और फिर उसने बड़ी कुशलता से उस मिट्टी के लौंदे को आकार दे दिया घड़े का। और फिर उसने बड़ी बारीकी से एक धागे से काट के चक्के से उसको अलग हटाया और बड़ी सावधानी से किनारे रखा और उसको सूखने दिया, और फिर उसको भट्टी में रख के पकाया। अब पकाने का भी तरीका है, उसके पीछे भी साइंस होती है कि वो उसमें कितनी लेयर का ईंटा या गोबर होगा, या उसमें गोबर का बना पलथी जो होता है वो रखा जाएगा, या कि कोयले से होगा, या कि किस चीज से कितनी आग जलानी, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। कुम्हार को ये भी अंदाज लगाना पड़ता है, जिससे वो अपने घड़े को कितने समय तक रखे ये भी कैलकुलेशन करता है, और फिर वो अपने उस कच्चे घड़े को रख के पका लेता है। अब घड़ा कैसे बना? तो उसमें मिट्टी है, चक्का है, डंडा है, कुम्हार है, पानी है, गोबर की पलथी या लकड़ी या कोयला है, और कुम्हार की बड़ी सही कैलकुलेशंस और उसकी कला है हाथ की। इसलिए हमारे जितने कुम्हार हैं, आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक का चक्का यूज करने लग गए हैं, अच्छी बात है। पर गांव देहात में तो अभी भी वही डंडे से चक्के को घुमाते हैं, उस पे वो बनाते हैं, तो उसकी कुशलता है, एक कला है उनकी। अब अगर घड़े को आप तोड़ेंगे तो वो फिर वापस मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी को फिर पानी डाल के गूंदेंगे और किसी कुम्हार के हाथ आएगा तो वो फिर से कुछ नया आकार, उससे सुराही या घड़ी या कोई भी तश्तरी वो चीज फिर उससे बना सकता है, मतलब वो रिसाइकल हो जाती है। उसका भी बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पकी हुई मिट्टी को वापस कच्चा तो नहीं किया जा सकता, तो सालों उसको मिट्टी में मिट्टी होके पड़ा रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम से हम उसको चेंज कर लेंगे। अब इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है ये कैसे हुआ, ये कैसे बना? अब ऋषि उस पर विचार करता है। घड़े में मिट्टी है तो ये मिट्टी घड़े का उपादान कारण, इसे हम बोलते आदान माने सपोर्ट देना, उप माने पास रह के जिसने सपोर्ट दिया वो हो गया उपादान कारण। कारण माने द कॉज।
कुम्हार, चक्का, डंडा, अवन, भट्ठी, कोयला, ये सब इसको हम कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त मतलब जो उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं है, बट उसके बगैर वो प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता। क्या बिना कुम्हार के घड़ा बन जाएगा? क्या बिना चक्के के घड़ा बन जाएगा? क्या बिना डंडे के, क्या बिना अवन के, क्या बिना भट्टी के, बिना लकड़ी के, बिना कोयले के क्या बन जाएगा? नहीं। तो वो ऐसा कारण है कि जिसके बगैर तो नहीं बन सकता है, पर वो एग्जैक्टली उस घड़े के अंदर भी नहीं घुस गया। तो जो पास रह के भी अलग रहे उसे हम निमित्त कारण बोलते हैं। और जो उस चीज के अंदर ही घुस गया है उसको हम उपादान कारण बोलते हैं। तो ज्ञानियों ने विचार किया कि इस संसार का उपादान कारण कौन है और इस संसार का निमित्त कारण कौन है। जिस वेस्टर्न साइंस के लिए तुम पगलाए जाते हो, आप ढूंढ लेना, आपको कहीं पर भी ऐसा कोई विचार मिलने वाला नहीं है कि इस तरह से किसी ने सोचा भी हो। माया और ब्रह्म, माया से सब हुआ है। माया के अंदर विक्षेप हुआ और उस विक्षेप से महतत्व, द बिग माइंड, और अहंकार माने बुद्धि का जो आप बड़ा रूप कह लीजिए, मैक्रो रूप कह लीजिए, वो बना। और फिर वहां से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, और फिर आगे इनका पंचीकरण हुआ, और फिर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इस इनके कॉम्बिनेशन से भिन्न भिन्न शरीर जो है वो बनते चले गए। तो अगर हम रिवर्स में जाएं, अगर हम पीछे को जाए, तो विचार करना होगा कि इस शरीर से पहले क्या था। जब ये शरीर नहीं था तो ये तत्व क्या थे। अब जब अमित नहीं था तो अमित कहाँ था? अमित का शरीर की मैं बात कर रही हूँ। फिजिकली स्पीकिंग कहेंगे हम कि हर स्त्री जब जन्म लेती है तो अपने अंडों के साथ जन्म लेती, कैलकुलेटेड अंडे वो अपने साथ अपनी ओवरीज में लेके आती है। पुरुष का जो वीर्य है वो बनता रहता है, इसलिए पुरुष का वीर्य कभी कम हो जाता है तो उसके अंदर फिर हम कह सकते काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी आ जाती है। और स्त्री के शरीर में अगर सही समय पर उसका साइकिल ठीक नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस है, और तो उसका वो जो एग रिलीज होता है, अगर उसकी टाइमिंग सही नहीं है, एग ठीक से फर्टिलाइज ही नहीं हो पाता, स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, मतलब उसकी भागने की जो स्पीड है वो नहीं है, इसलिए वो पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। और अगर एग सही समय पर रिलीज नहीं होता है या उतना हेल्दी नहीं है तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, माने द स्पर्मेटोजा विल नॉट रीच द एग एंड द फर्टिलाइजेशन विल नॉट हैपन, which gives rise to infertility in male and female both। थोड़ा सा हटके पर फिर भी एक टिप्पणी करती हूँ। आप देख रहे हैं आजकल कितनी आईवीएफ क्लिनिक्स खुल रही हैं। कारण आज के स्त्री और पुरुष की फर्टिलिटी रेट गिर गया। आप कोई नहीं पूछ रहा है कि क्यों गिर रहा है। क्लिनिक बन रहे हैं, बड़े महंगे महंगे खर्चे हो रहे हैं, और बी टाउन सी टाउन में खुल गई इनफर्टिलिटी क्लिनिक। शायद ये प्रकृति का सिस्टम है कि भाई आबादी बहुत ज्यादा हो गई तो अब कम कैसे करें, तो अब यही तरीका है कि नेचुरली आपका बच्चा जो हो ही नहीं, पर लोग कहते हैं हम साइंस से काम कराएंगे। हाँ, तो बहुत लोग आपके इस इनफर्टिलिटी से पैसे बनाने वाले। ख्वाहिश है पूरी तो करेगा ना आदमी, कैसे करेगा। पर कभी सोचे कारण क्या है? कारण एक पेस्टिसाइड, कारण आपका गेहूं, चावल, चीनी पेस्टिसाइड वाला। हाँ, अगर आपने कभी घर में कोई पौधे लगाए हैं तो आपको मालूम होगा, अगर बीज आपका सड़ा हुआ है तो उससे पौधा नहीं होगा। अगर आपका बीज खराब है तो आपकी सारी फसल खराब है। अच्छा, आपका बीज बहुत अच्छा था पर जमीन कलर वाली थी, टू मच सल्फर इन दैट, सल्फर डाइऑक्साइड इन दैट,
Too much sodium in that. Less potassium, less nitrogen in the soil, and more of sodium. Well, you will waste your seeds. तो धरती भी सही चाहिए. खाद डाल डाल के, रासायनिक खाद डाल डाल के इन्होंने मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म कर दी. मैंने the fertility rate of the soil has gone down. So no wonder the fertility rate of male and female has gone down. Our body is made of what? Fruit, vegetables, rice, wheat, what we are eating. You know, all the dairy and everything. अब वो हर चीज में तो पेस्टिसाइड आ गया, तो आपका शरीर ठीक कैसे रह सकता है? ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर. आप ऐसे करिए, 50 साल पहले झारखंड के किसी गांव में बर्गर पिज्जा मिलता था, चीनी मिलती थी? चीनी भी नहीं मिलती थी. दूर गांव 40 साल पहले देहात में, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हिमाचल का हो, क्या वहां पर ये प्रोसेस्ड व्हाइट शुगर मिलता था? नहीं मिलता. अधिकतर लोग गुड़ खाते थे, शहद खाते थे. पहाड़ वाले शहद ज्यादा खाते थे. प्रोसेस फूड कुछ था नहीं, पैक्ड फूड कुछ नहीं था. अभी तो तुम्हारी दालें पॉलिश होके आ रही हैं. पॉलिश दाल, ऊपर से तुम इसे कुकर में पकाते हो, सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं उसमें.